of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous session, we were doing the chapter pollution of air and water. Now, in this session, we will continue that topic, that is water pollution. So, what is before starting the water pollution, we should know what is a potable water and how it can be cleaned. So, what is a potable water? Potable water is that water which is fit for drinking. Okay, and if you are saying fit for drinking, that means you can prepare any food material or any consumption material or any food material that is used for consumption can be prepared by using this water only. So that water is known as potable water. So drinking water or the water that is fit for consumption and the food preparation is also called potable water. Now when we are saying the potable water, it should be purified one. So purified होता कैसे है? The first of all, basically हमारे पास सारे water bodies में waste material content इकट्ठा होता है. So we need to decompose that waste material or separate that waste material from our water so that it can be used in household purposes or for drinking purposes. For that we need to purify water. In order to prevent water pollution, water from household, industries, and other sources is treated in a sewage treatment plant and then it is released in the water bodies. Also, water from the water bodies is treated before passing it on to the household and other industries to ensure that it is fit for the use. So, what are the different methods for water purification? First, that you always studied in class 5th, 6th, 7th. The first one is your boiling, second one is a filtration, and then you have chlorination, and that was a major three process that is used for purifying water. So what is boiling? You all know that we put the beaker on the flame and then we heat the water up to 100 degrees Celsius and it kills the germs. Then it is being sieve out or filter out or remain it for cooling, that is known as boiling. So boiling, it kills the germs present in the water. Many people boil water before drinking it. So this is the first method to clean the water. The next one is your filtration. You all know that filtration is a process of separating the residue and the filtrate, like the tea when we prepare it. So basically when we do filtration, what happens, the unwanted material, that is the residue, will collected on the filter paper and then the clear water comes out as a filtrate that is used for drinking purposes. So it is a physical method of removing impurities from the water. Many households use water purifiers that can filter water and make it safe for drinking. Okay, next is chlorination. Chlorination may basically we add chlorine tablets which act as a cleansing agent. Okay, that makes the water fit for consumption. So chlorine is a natural cleansing agent for water which makes it fit for the consumption. Often chlorine tablets are added in water to remove impurities from it. You must have seen the swimming pools in Apuhar or your zoo or your adventure island is basically contains your clear water. It was all because of chlorine tablets is being added in it so that the water can appear clean. Okay, now next is we have seen how we can clean the water, but what is the need of cleaning the water? It is all because of water pollution. So what is water pollution? Basically the water which is not clean, not fit for drinking and causes harmful bacteria, that is known as water pollution. So water is not only the necessary for the existence of life on the earth, but it is required to perform several days to day activities like cleaning, washing clothes, bathing, cooking, etc. Due to these activities, several substances get mixed up in the water which makes it unsafe for the further consumption. Obviously, when you are doing several activities like cleaning, washing, bathing, cooking, it makes the water unclean, and to clean that water we need to purify it. So this unclean water is your water pollution. So this addition of biological, chemical and physical substances in water is called water pollution. These substances contaminate water and make it unfit for the consumption of human beings and animals are called water pollutants.
So these are the sources of water pollution. The first, when it rains, water that is not absorbed into the ground, intercepted by the vegetation or evaporated, flows into the surface water such as rivers, canals, and coastal waters. This flow is called runoff. As the runoff flows over the roads and land, it picks up pollutants. नाउ द फर्स्ट पॉइंट सेज कि आपको जो वाटर ऊपर से आया, रेन के थ्रू जो वाटर आया वो लैंड के ऊपर है, एंड लैंड पे डिफरेंट डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स हो जाते हैं. इट लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन. नेक्स्ट, सरफेस वाटर कैन, कार वाले पॉइंट क्लास, द सरफेस वाटर कैन बी पोल्यूटेड थ्रू ग्राउंड वाटर. ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर आपका गंदा है तो आपको सरफेस वाटर की वजह से वो अनक्लीन हो जाएगा, जो अल्टीमेटली पर वाटर बॉडीज पे जाके कलेक्ट होगा. देन थिंग्स पुट इनटू द स्ट्रॉम ड्रेन्स. आपने जो भी ड्रेन्स में पानी डाला है या जो भी डर्ट मटेरियल डाला है, तो अपने पाइपलाइन के अंदर वेस्ट मटेरियल डाला है, वो अल्टीमेटली कहाँ ओपन होता है? आपके रिवर्स में, ओके, या कैनाल्स में. सो अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा? आपका वाटर बॉडीज़ में जाएगा सारा. देन आप कोई गार्डनिंग कर, एक्सेस ऑफ वाटर है या फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर रहे हैं लॉन्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर, वो सारा एक्सेस में वाटर का फ्लो करता है एंड अल्टीमेटली वो वाटर बॉडी में जाता है एंड वाटर बॉडी से पॉल्यूशन क्रिएट होता है. नेक्स्ट, आपने रोड्स पे कोई भी ऑयल ग्रीस डंप कर दिया, वो डंप होने के बाद कहाँ जाएगा? सारा वाटर के साथ फ्लश होगा तो अल्टीमेटली वाटर बॉडीज में जाएगा. तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स ड्यू टू विच योर water is being polluted. So what is the water pollution and its effect? क्या क्या इफेक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्या पॉल्यूटेंट्स हैं. द फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में क्या 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 आ सकता है? ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल को रिफाइन कर रहे हैं हम. टेक्सटाइल मिल्स हैं, शुगर मिल्स है, पेपर फैक्ट्रीज है, केमिकल फैक्ट्रीज हैं. सो बेसिकली इन सब में अलग अलग मटेरियल्स जनरेट होंगे एंड दीज मटेरियल इज नोन एज ए पॉल्यूटेंट एज दे आर इम्प्योरिंग द water. So they are known as pollutants. So what are the different pollutants in the industries like arsenic, lead, chloride and hot water? Okay, now why hot water? Because जितना ज़्यादा गर्म पानी होता है क्लास, उससे एक्वेटिक लाइफ जल्दी डेड हो जाती है. So it is act as a pollutant over here. So what is the effect? टॉक्सिसिटी बढ़ेगी प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, मतलब टॉक्सिक कंटेंट ज़्यादा होंगे क्योंकि सारा अल्टीमेटली रन करके वाटर में जाएगा एंड प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है. तो वो टॉक्सिक वाटर ही हम प्लांट्स को दे रहे हैं, प्लांट्स के पास टॉक्सिक कंटेंट आएगा तो वही टॉक्सिक कंटेंट एनिमल्स के पास भी आएगा. नेक्स्ट, अफेक्ट द सॉइल. सॉइल को अफेक्ट करेगा, प्लांट प्रॉपर्ली ग्रो नहीं करेगा, सॉइल एसिडिक हो जाएगी. हॉट वाटर से वाटर बॉडीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा जिससे प्लांट और एनिमल्स को अफेक्ट होगा. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स बेसिकली आपका केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर कॉपर, आर्सेनिक, सल्फेट, लेड, क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्रिएट होगा, वाटर बॉडीज कंटामिनेट होंगी, एल्गी की प्रोडक्शन बढ़ेगी पॉन्ड एंड लेक्स में, और अगर एल्गी इंक्रीज करेगा तो वो सर्फेस पे ग्रो करेंगी एंड जब वो सर्फेस पे ग्रो करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा क्लास कि वो एल्गी आपके नीचे जो वाटर बॉडीज में एक्वेटिक लाइफ ग्रो कर रही है वो डेड हो जाएगी. डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर लीड्स टू द किलिंग ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट इज अनट्रीटेड सीवेज. आपने वेस्ट मटेरियल को ट्रीट नहीं किया जिससे फूड वेस्ट जनरेट हो, लाइक उसमें फूड वेस्ट आएगा, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूट होगा, डिजीज लाइक जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफाइड एंड वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा. So these are the water pollution sources, pollutants and its effect. So we have seen how the water is harming us. Water pollution is harming us. So we need to prevent the water pollution. First we should check the sewage. जो हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डंप कर रहे हैं हमें उसे सेग्रीगेट करना चाहिए, उसे चेक करना चाहिए ताकि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर बॉडी में डायरेक्टली ना जाए. इंडस्ट्रीज शुड स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द लॉज एंड डू नॉट डिस्पोज अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनटू द रिवर्स और एनी अदर वाटर बॉडी डायरेक्टली. नेक्स्ट, मोर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स शुड बी एस्टैब्लिश. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होते हैं क्लास? जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जिसमें हम वाटर को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं, क्लीन करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास सेटअप करनी चाहिए ताकि वाटर वहाँ से जो सबसे ज़्यादा डंप ऑफ हो रहा है वो क्लीन वाटर डंप हो, पॉल्यूटेड वाटर डंप ना हो. वी शुड सेव वाटर एज मच एज वी कैन. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक श्योर दैट देयर आर नो लीकिंग टैप्स इन द हाउसेज. ये आप सबको पता है. वी शुड रीयूज़ वाटर. इफ़
हमें वाटर को रीयूज़ करना चाहिए. लाइक वी आर यूजिंग वॉशिंग क्लोथ्स. अगर वी आर वॉशिंग द क्लोथ्स, तो जो वाटर आया है, सर्फ वाटर है, जो डिटर्जेंट वाटर है, उसे हम अपने हाउस फ्लोर्स को क्लीन करने में यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द सम मेजर्स दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ यूट्रोफिकेशन. व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन क्लास? जो वाटर कंटेंट से रिलेट करता है. जब भी आपका वाटर इकट्ठा होता है एक जगह पे, तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होना शुरू, इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं. दिस एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर इज नोन एज यूट्रोफिकेशन. ओके, तो जैसे बेसिकली हमने कहा था खड़ा पानी होता है. खड़ा पानी मतलब वो फ्लो नहीं कर रहा रेगुलरली. एंड जब कोई भी वाटर फ्लो नहीं करता तो एक जगह पर खड़ा होना शुरू होता है. दैट वाटर इज नोन एज स्टैग्नेंट वाटर. तो वो जो स्टैग्नेंट वाटर है वो अल्टीमेटली वहाँ पे न्यूट्रिएंट कंटेंट इकट्ठे होने स्टार्ट होते जा रहे हैं. जैसे जैसे न्यूट्रिएंट कंटेंट इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? यूट्रोफिकेशन बोला. तो यूट्रोफिकेशन इज द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर, especially stagnant water. Eutrophication mainly occurs due to the addition of chemicals in the वाटर बॉडी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे केमिकल्स ऐड अप होंगे. अब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी प्रोडक्शन होगी और एल्गी प्रोडक्शन ग्रो करेगी तो आपकी एक्वेटिक लाइफ धीरे धीरे डाई करना स्टार्ट कर जाएगी. एज द डाई डिकम्पोजर्स बिगेन टू राइज इन द वाटर. दिस डिकम्पोजर्स टेक अप मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. सारे ऑक्सीजन कंटेंट और डिकम्पोजर्स ले जाएंगे, जिससे वाटर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी. एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वाटर के अंदर होनी चाहिए वो कम होगी, जिससे आपको एक्वेटिक लाइफ जो वाटर की है वो ख़त्म हो जाएगी. तो दिस इज़ योर यूट्रोफिकेशन. यू कैन सी आपका जो खड़ा वाटर है, सेडिमेंटेशन से लैंड ब्लॉक हो गई है, सनलाइट नीचे नहीं जा रही है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस अंदर आते जा रहे हैं, वहाँ से फाइटोप्लैंक्टन ग्रो कर रहे हैं, सेडीग्रास के ऊपर ऑक्सीजन कंटेंट इकट्ठा, डिकम्पोजर्स आते जा रहे हैं, टिक्के करते जा रहे हैं, एल्गी डिपोजिशन होती जा रही है, एल्गल ब्लूम बन रहा है एंड अल्टीमेटली एल्गी डाई कर रहा है. ओके, so this is your eutrophication. So what we have studied in this chapter, that is potable water, water pollution measures to prevent water pollution and eutrophication. So I hope this chapter is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. And in this way we have completed this chapter, pollution of air and water. That's all for today.